Good morning, Vita. Welcome you all once again in my YouTube channel. Today we are going to discuss lesson 3 metals and non-metals of class 10th part 2. First part ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖਿਆ that's well and good. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ तो लिंक डिस्क्रिप्शन ਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ so please watch that lesson part 1 क्योंकि part first ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ second part ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ it is little bit difficult because it is a series proper series ਨੂੰ follow ਕਰਦੇ ਜਾਓ and you will find that the lesson is too much easy it's not difficult so ਅਸੀਂ first part ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ studied ਕੀਤਾ कि मैटल ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਨॉन ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸੀ ਟੁਡੇ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੇਟਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਰਫੈਕਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ 100% ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਸੋਲਿਡ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲ ਸੋਲਿਡ ਨੇ ਯੈਸ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਆਇਰਨ ਕਾਪਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਗੋਲਡ ਸਿਲਵਰ ਥੀਸ ਆਲ ਆਰ ਸੋਲਿਡਸ ਆਲਦੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਨੇ ਬਟ ਮਰਕਰੀ ਜੋ ਹੈ दैट इज लिक्विड एक्सेप्शनल केस आ गया मरकरी यू नो जो ਤੁਹਾਡੇ ਥਰਮੋਮੀਟਰ 'ਚ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਮਕ ਜਿਹੀ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੁਖਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਰਕਰੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲ ਸੋਲਿਡ ਨੇ ਪਰ ਮਰਕਰੀ ਕਿਆ ਲਿਕੁਇਡ ਇਟਸ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਆਫ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਹਾਰਡ ਯੈਸ ਡੂ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਹਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ आयरन हार्ड है कॉपर हार्ड है जिंक हार्ड है सो मैनी मेटल्स आर देयर जो ਅਸੀਂ ਘਰੇ यूज करते हैं दे आर हार्ड बट सोडियम एंड पोटाशियम they are soft how much soft that they can be cut even with the help of knife ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ कैंडल्स घर कैंडल्स ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਨਾਈਫ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਰਡ ਕੈਂਡਲ ਆ ਇਹ ਮੈਟਲਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਉਨੀਆਂ ਕਿ ਹਾਰਡ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਟਲਸ ਹੈਵ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਮੈਲਟ ਦੀ ਆਇਰਨ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਮੈਲਟ ਦੀ ਕਾਪਰ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੈਲੀਅਮ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ੀਅਮ These are two metals which have very low melting points. ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ these can be melted with the help of the heat of our palm. So this is also exceptional point ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ fourth point non metal ਦਾ ਹੈ we studied in the last lecture that non metals are bad conductor of electricity. Metals conductor C, non-metals are not good conductor of electricity. तो बेटा एक non-metal है carbon, but carbon is a good conductor. Carbon is a good conductor of electricity. Carbon good conductor है जब कि ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ कि non-metals are bad conductor of electricity. Fifth point, non-metals are non-lustrous. ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਆਰ ਨੌਨ ਲਸਟਰਸ ਬਟ ਆਇਓਡੀਨ I2 ਇਹ ਐਸੀ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਲਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ अदरवाइज जो प्रॉपर्टीज़ ने मैक्सीमम मोस्टली वो वही ने जो आप लास्ट लेक्चर पढ़िया सी वट यू नीड टू कीप इन माइंड वन थिंग मोर असी पढ़िया सी मोस्टली नॉन मैटल्स ने जड़ियाँ बेटा दे आर गैसेस और सॉलिड एग्जाम्पल देना मैं
गैसेस बारे पढ़िया से ਆਪਾਂ नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन दीज आर द गैसेस दीज आर द नॉन मैटल्स सॉलिड क्या पढ़िया सी राइट हैंड साइड में लिखा सी ब्लैक बोर्ड दे सल्फर कार्बन दीज वर सॉलिड बट इत्थे एक नॉन मैटल ब्रोमीन ऐसी है ब्रोमीन विच इज लिक्विड नॉर्मली कोई नॉन मैटल लिक्विड नहीं होंगी बट दिस इज वन मोर एक्सेप्शन इन द केस ऑफ नॉन मैटल so we have studied 3 metals and 3 non-metal exception from their normal behavior so keep in mind ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ physical classification physical properties of the metals and non-metals but it is not possible to study all the properties of metal and non-metals with the physical properties so we need to learn the chemical properties also physical property ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ chemical properties ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਏਗਾ now we are discussing the chemical properties of metal first property reaction with air ਦੇ ਨਾਲ reaction ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ एयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦੋ ਗੈਸਸ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬਚੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਵੈਨਐਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਤੇ ਨॉन ਮੈਟਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਆਕਸਾਈਡਸ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਟਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਹੋਣਗੇ एंड अगर वो नॉन मैटल है तो नॉन मैटेलिक ऑक्साइड होंगे इट इज़ श्योर कि ऑक्साइड्स ही बनेंगे सो क्या पॉइंट है मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद एयर टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स सब तो पहला कोशिश करते हैं सोडियम पोटाशियम एक एक दी करते हैं रिएक्शन 4Na O2 it will form 2Na2O sodium react with oxygen to form sodium oxide next is the magnesium react with oxygen to form magnesium oxide कोई भी मेटल है कॉपर है एल्यूमिनियम है सोडियम है पोटाशियम है जिंक है दे ऑल react with oxygen to form their respective oxides पहली गल सैकेंड ये जिहड़े ऑक्साइड्स ने इन्हां दी नेचर किहो जी है बेटा मोस्टली एक गल याद रखने वाली है ध्यान नाल मोस्टली मैटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर दिस इज द मेन पॉइंट मैटेलिक ऑक्साइड्स जिहड़े ने उन्हां दी नेचर किहो जी है दे आर बेसिक इन नेचर खारी ने सुभाव दे विच हाउ डू वी नो सानू किवें पता लगे बेसिक ने दो एग्जांपल देना सोडियम ऑक्साइड जो ए वाला ये रिएक्ट करवाओ वाटर दे नाल हाइड्रोलाइसिस करवाओ की बन रहा 2Na 2Na दो ऑक्सीजन ने दो ही हाइड्रोजन ने ध्यान नाल देखो दो ऑक्सीजन तो दो ही हाइड्रोजन ने तो दोनों में मिलकर बन गया OH किन्ने बन गए OH दो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर एंड दिस इज अ बेस ये बेस है इट मीन्स मैटल दे ऑक्साइड्स ने जिहड़े दे आर बेसिक वन मोर एग्जांपल द सेम ऑक्साइड react with acid same oxide react with acid to form 2NaCl plus H2O देखो 2Na 2 अगे लिखा हुआ Cl 2NaCl बन गया जी what left behind 2 हाइड्रोजन and 1 ऑक्सीजन ते बन गया वाटर इस रिएक्शन ਨੂੰ पहचानो एसिड बेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ कि what it represent it is the reaction of
एसिड एंड बेस। ये एसिड आ सानू पता चंगी तरह, अगर कोई चीज़ एसिड नाल रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रही है, दैट मस्ट बी श्योरली द बेस, वो बेस ही होएगी। दैट्स वाई मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेस इन नेचर मोस्टली। बट एवरी ऑक्साइड इज नॉट बेसिक। अगली गल याद रखनी है कि एवरी ऑक्साइड इज नॉट बेसिक, सम आर एम्फोटेरिक, some are amphoteric. Let me give you the example. Suppose करो साढ़े कोल aluminium oxide है Al2O3. This oxide is not basic, only this is called amphoteric. हाँ जी, what is amphoteric? Having the properties of both acid and base. वो oxide ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਐਸਿਡਿਕ ਵੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਮਫੋਟੇਰਿਕ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਬੇਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ HCl, HCl ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਟੂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੀ? 2AlCl3। बेटा एक अलमीਨੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ 3 क्लोरीन लगते हैं, तो इतने तो 2 अलमीਨੀਅਮ ऑलरेडी प्रेजेंट ने, 2 इधर अलमीਨੀਅਮ लिखने पै गए एंड वी नीड टू पुट द 6 क्लोरीन्स। अगर इतने 6 क्लोरीन्स लग चुके हैं, here we will write 6 to balance the chlorines on both sides. What left behind? 3 oxygen, 6 hydrogen। बना लो क्या बनया? It becomes water plus 3H2O। फर्स्ट केस दे विच ये एसिड नाल रिएक्ट कर गया टू फॉर्म अलूमीनियम क्लोराइड सॉल्ट एंड वाटर, दैट शोज कि की है बेस। एसिड नाल रिएक्ट कर रहा तो की होया? बेस। सेकंड केस Al2O3 plus NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2। ये बेस है। हुण देखो बेस नाल रिएक्ट करता या नहीं करता? यस डू, करता। हाउ? व्हाट इज फॉर्म्ड? 2NaAlO2, ये बन गया सोडियम एल्यूमिनेट प्लस 2Na चले गए, 2 अलूमिनियम चले गए एंड 2 ऑक्सीजन, 2 2 ज़ा 4, 4 ऑक्सीजन। इतने ऑक्सीजन कितने सी? 3 एंड 2, टोटल 5 सी ऑक्सीजन, 4 उधर ऑलरेडी चले गए, 2 2 ज़ा 4। हाउ मच लैफ्ट बिहाइंड? 1 ऑक्सीजन लैफ्ट बिहाइंड। 5 दे विचों 4 चले गए, 1 बच गया। हाइड्रोजन काउंट करो, सिर्फ ये पे ने कितने ने? 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन बचा, इट इज फॉर्मड वाटर प्लस अगेन वाटर। यू कैन सी वेरी क्लियरली कि अलूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट, सो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एसिड नाल भी रिएक्ट कर रहा तो बेस नाल भी रिएक्ट कर रहा, इथों यदि एम्फोटेरिक नेचर जिहड़ी हैगी आ वो कन्फर्म हो जाती है। So metallic oxides are mostly basic, but some are amphoteric in nature also। ये गल याद रखनी आ। वन थिंग मोर बेटा, इक्वेशनस ने जिहड़ियां इन्हां नूं लिख के लर्न करो, इन्हां नूं याद करन दा कोई है नहीं मसला कि यू कैन लर्न ओनली, यू नीड टू राइट दैम, ओनली दैन यू कैन लर्न दीज रिएक्शंस। अदरवाइज अगर तुम सिर्फ देखोगे, याद करने की कोशिश करोगे, भुल ही जाओगे बार बार। ठीक है, सो प्रैक्टिस करो राइट करके ना। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। मैटल्स की रिएक्शन वाटर के नाल किस तरह होंदी है वो भी देखते हैं आपां।
reaction with water। सब तो पहला गल देखो, मोस्टली मैटल्स रिएक्ट विद वाटर, मोस्टली मैटल्स रिएक्ट विद वाटर, पर मैटल्स तीन तरीके नाल रिएक्ट करनगे। पहला विद कोल्ड वाटर, वो मैटल्स आउणगे इत्थे जिहड़े कोल्ड वाटर नाल रिएक्ट करनगे। दूसरी कैटेगरी बेटा वो मैटल्स होणगियां विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, दे विल रिएक्ट विद हॉट वाटर ओनली। दूसरी कैटेगरी रिएक्ट विद हॉट वाटर। एंड द थर्ड वन, those metals who don't react with cold or warm or hot water, those metals will react only with steam। तो metals steam ਨਾਲ react ਕਰਨਗੇ। and fourth category, one more is there, those metals, ਉਹ metals which do not react with any type of the water, whether that is cold water, hot water or steam। ਉਹ ਤਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ, ਚਾਹੇ ਗਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਾਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੋਸ ਲਗਾਊਂਗਾ ਕਿ these are four categories of metals। ਅਗੇਨ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਲਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਟਲਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਚਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਸਟੀਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆ। ਫਸਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ potassium, these react with water to form, बैलेंस बात करांगे इन्हों ਆਪਾਂ। let us make the product sodium hydroxide plus hydrogen gas and plus heat। first of all we are discussing the metals which react with the cold water। ਉਹ metals जो cold water ਨਾਲ react ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ sodium ਤੇ potassium। react ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ? sodium hydroxide, hydrogen gas and heat energy। ਬੇਟਾ ਯੂ ਨੋ ਵੈਲ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਬਸਟੀਬਲ ਗੈਸ ਹੈ, ਇਟ ਬਰਨਸ ਵਿਦ ਪੌਪ ਸਾਊਂਡ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਐਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦ ਬਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੀਜ਼ ਮੈਟਲਸ ਕੈਚ ਫਾਇਰ ਵੈਨ ਦੇ ਕਮ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ the hydrogen gas catch fire with the evolution of lots of heat। ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੇਅਰ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲੱਸ ਹੀਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੋ and ਦੋ, two here, two here, two here। So because they catch fire, they are, point note करो सारे बच्चे, stored under kerosene oil। इस रिएक्शन करके बड़ी ज़्यादा हीट पैदा होने करके हाइड्रोजन अग लग जाती करके इन्हां नूं बचाउण तो लई दे आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन ऑयल। मिट्टी के तेल च ये मैटल नूं स्टोर करके रखा जाता, क्योंकि इफ वी प्लेस दीज मैटल्स ओपनली, अगर ये मैटल्स खुले दे विच रख दें आपां, दीज रिएक्ट विद एयर एंड वाटर एंड कैच फायर, अग लग जाएगी। क्वेश्चन है कि सोडियम एंड पोटाशियम मैटल्स आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन ऑयल, वाई? सोडियम और पोटाशियम मैटल्स नूं कैरोसिन के तेल च क्यों रखा जाता है? आंसर क्या? These are very reactive metals, these react vigorously with water to catch fire। इस चीज़ तो बचाने लिए इन्हों
मिट्टी तेल स्टोर किया जाता है। पहला पॉइंट। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकंड पॉइंट, किहड़ा बेटा, मैटल्स विच रिएक्ट विद द हॉट वाटर। सो इत्थे एक चीज़ होर डिस्कस करनी बनती है बिफोर गोइंग टू सेकंड पॉइंट। कैल्शियम इज आल्सो ए मेटल, सिमिलर वे ना रिएक्ट करेगी, सिमिलर वे ना, CaOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, तुहाडे मन दे सवाल आएगा कि सर कैल्शियम नूं भी फिर अग लगती है, मीनस ये भी तो रिएक्शन वही है ना। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हीट एंड हीट। आंसर इज नो, कैल्शियम नूं अग नहीं लगती, क्योंकि कैल्शियम दे विच जिहड़ी ये हीट एनर्जी है इन्नी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती कि जो हाइड्रोजन नूं इग्नाइट कर सके। हीट इज नॉट सो मच एज टू इग्नाइट द हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंदी है, हीट प्रोड्यूस होंदी है, बट कैल्शियम डू नॉट कैच फायर। इंस्टेड कैल्शियम फ्लोट्स ओवर वाटर। दिस इज अनदर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन गया कि कैल्शियम मैटल जिहड़ी है वो पानी के उपर क्यों तैरती है, क्यों फ्लोट करती है। रीजन बिहाइंड दैट, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन पैदा होती है। ये वाली हाइड्रोजन गैस कैल्शियम की सरफेस के नाल स्टिक कर जाती है। जो कैल्शियम मैटल की सरफेस के नाल बबल स्टिक कर गए गैस दे, तो कैल्शियम मैटल की हो जाएगी, थोड़ी हल्की हो जाएगी। अगर वो हल्की हो रही है विद द गैस मॉलिक्यूल्स, सो दैट विल फ्लोट ओवर द वाटर। इंस्टेड कैल्शियम फ्लोट्स ओवर द वाटर। सेकंड कैटेगरी साडे कोल आ गई मैग्नीशियम हॉट वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर in the similar way to produce magnesium hydroxide and hydrogen gas। सिमिलर वे दे नाल इनू भी बेटा अग नहीं लगती, इग्निशन नहीं होंदी। कैल्शियम तो बाद ये भी फ्लोट करती है अपॉन द सरफेस ऑफ द वाटर। क्यों? बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की सरफेस उत्ते वो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल स्टिक कर जाते हैं, तो उहदे करके ये भी फ्लोट करती है हल्की होके। सो दीज आर टू मैटल्स विच फ्लोट्स ओवर वाटर एंड दे रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड, दिमाग च रखो इन चीज़ों कि किहड़ी मैटल किस तरह रिएक्ट करती है, हॉट वाटर ना करती है या कोल्ड वाटर ना करती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड कैटेगरी, किहड़ी सी? द मेटल्स विच रिएक्ट विद स्टीम, आयरन, अलमीनियम एंड जिंक। बेटा ये जिहड़े हैगे ने सिर्फ तो सिर्फ स्टीम नाल ही रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर नाल जां हॉट वाटर नाल रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, सो ये मैटल्स ने साडे कोल थोड़े रिएक्शन देखिए आपां। अलमीनियम प्लस वाटर एरो, इट फॉर्म अलमीनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस साडे कोल आ गया हाइड्रोजन गैस। See how many? 2 aluminium are there. So next is the oxygen, 3 ने इत्थे मैं 3 लिखण लग्या ऑक्सीजन बैलेंस करने लई। हाइड्रोजन कितने आ गया 3 2 6 एंड 3 2 6। ये मैटल्स स्टीम नाल रिएक्ट करदियां ने अगलियां मैटल्स टू फॉर्म देयर ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस। तीजी कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी साडे कोल आ गई। दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ, ऑरम, सिल्वर, कॉपर। एक कैटेगरी साडे कोल हैगी आ एंड लेड। वन मोर इज द लेड। These do not react with water at all.
चाहे पानी तत्ता है, चाहे ठंडा है, चाहे स्टीम आ, दीज डोंट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी नाल रिएक्ट ही नहीं करदियां। सो इस तरीके दे नाल आपां देखिआ कि रिएक्शन विद वाटर मैटल्स नूं आपां 4 पार्ट्स डिवाइड कीता सी। पहला पार्ट मैटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सैकेंड पार्ट मैटल रिएक्ट विद हॉट वाटर, किहड़ी सी? मैग्नीशियम। थर्ड पार्ट मैटल रिएक्ट विद स्टीम ओनली, आयरन, एल्यूमीनियम एंड जिंक। फोर्थ पार्ट मैटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, जो पानी नाल रिएक्ट ही नहीं करदियां। सो ये साडे कोल सी 4 कैटेगरीज। नाउ नैक्सट आपां एक छोटा जिहा टॉपिक होर कवर करिए कि वट हैपन वैन मैटल रिएक्ट विद एसिड, कि जदों मैटल्स एसिड नाल रिएक्ट करदियां ने तो की हुंदा? मैटल रिएक्ट विद एसिड्स वेरी कॉमन रिएक्शन है, असी ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल कर चुके हैं। द रिएक्शन ऑफ जिंक मैटल विद सल्फ्यूरिक एसिड। जी मैं तो लिख देना पहला मैटल प्लस एसिड तो की बनता? साल्ट ऑफ द मैटल एंड हाइड्रोजन गैस। ਇਹ चीज़ बनती आ मैटल तो एसिड के नाल साल्ट तो हाइड्रोजन गैस। इसकी पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखते हैं आप, जिंक मैटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इट फॉर्म जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। सो सिंपली कहना बेटा आपा ने कि मैटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इस तरीके दे नाल ये रिएक्शन साडी कंप्लीट होती है। क्योंकि लैसन बेटा रिएक्शन वाला है, टू मच लेंथी लैक्चर आई थिंक कि दैट विल नॉट बी गुड। सो इन्ना क लैक्चर तुसीं देखो, इनू ध्यान नाल अच्छी तरह वॉच करो, कापी च नोट करो कि क्या हुंदा, किहड़ी किहड़ी चीज़ नाल किहड़ी किहड़ी चीज़ रिएक्ट करती है नहीं करती। ठीक है, रिएक्शन को वार वार लिख के देखो। सो बाकी जो डिस्कशन है वी विल मेक इन अवर थर्ड वीडियो, वेट करो। सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट है बेटा जिन्होंने चैनल सबसक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल सबसक्राइब कर दो। वीडियोज़ आउंदियां रहनियां ने विद प्रैक्टिकल्स, इन्हों के प्रैक्टिकल्स की वीडियोज़ भी तुहाडे इस चैनल पर आउणगियां। एंड जिन्होंने करता थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया रिक्वेस्ट है भी वो चैनल को सबसक्राइब कर दें ताकि तुहाडे कोल जिहड़ियां वीडियोज़ ने वो सब तो पहला एज अ नोटिफिकेशन पहुँचदियां रहन। तो एक रिक्वेस्ट होर है बेटा, तुहानूं लैक्चर किस तरह लग्या कमेंट जरूर कर दिओ। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट ताकि मैनूं हौसला मिलता, पता लगता भी कि कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तुहाडे तक ये लैक्चर किस तरह पहुँच रहे हैं, कमेंट जरूर कर दिओ। आई एम वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।